Good evening, friends. Thank you for joining Candid Media every evening to follow what's happening in India and abroad. Thank you for sending me your useful comments and suggestions. If you believe in this channel, do hit the like button. Share with friends and spread the message. Our only mission is to bring you the truth at both sides of the story. Thank you for your support. Today, Kajal joins us. Welcome, Kajal. नमस्ते मीना जी, थैंक यू सो मच. मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके चैनल पे आना. Thank you so much. And all the viewers, they wait for you to come because they keep saying that, see, when is she coming? And I like the fact that, see, they all enjoy it immensely when you come. थैंक यू. आपके सारे व्यूअर्स को हम धन्यवाद करते हैं. थैंक यू सो मच. Yeah. So let's start with the first piece of news, Kajal. See, Amir Khan has finally spoken his mind on the boycott Lal Singh Chadda trend on the microblogging site Twitter. Now, the film is getting flack on social media for comments that the actor made about India a few years back. This resulted in many asking for a boycott of the film. When asked if such campaigns against his films make him upset, he said, it makes him sad. He said, yes, I feel sad. Also, I feel sad that some of the people who are saying this in their heart believe that I'm someone who doesn't like India. In their hearts, they believe, but it is untrue. It is rather unfortunate that some people feel this way. That's not the case. Please don't boycott my film. Please watch the film. So if you went down memory lane, you will also know that he was one person who kept quiet about Sushant Singh also. So these are the two factors that public have decided to boycott this fellow. Now look at the way he's falling on his knees, to beg us to go and see his film. मीना जी, पहले एक शब्द से मैं शुरुआत करूंगी कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए. कल तक अपने आप को बॉलीवुड का किंग खान कहने वाला, बॉलीवुड का मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान, फिर देन बादशाह शाहरुख खान, भाईजान सलमान खान और नवाब सैफ अली खान, इन सबकी इतनी खतरनाक बैंड बजी हुई है. और कहते हैं ना कि पाप का घड़ा कभी ना कभी तो भरता है. तो वो पाप का घड़ा जो है इनका भर चुका है. अब आप बताओ कि ट्विटर पे ट्रेंडिंग कितने लोग ट्विटर पे है? 2%, 3% ऐसे लोग हैं जो ट्विटर यूज करते हैं. लेकिन ये भारत की जनता के ही दिल से निकल चुके हैं. ट्विटर पे ट्रेंडिंग करने वाले देखने नहीं जाएंगे, पर जो ट्विटर पे नहीं है उन्हें तो पता ही नहीं है ना क्या ट्रेंड हो रहा है. पर लोगों ने तो इनको सिरे से नकार दिया. आप देखो, पिछली शाहरुख खान की फिल्में हैं या सलमान खान की फिल्में, इवन सैफ अली खान की, इसकी आमिर खान की सारी फिल्में लगातार पिटती जा रही है. तो बात यह है कि लोगों ने इनको दिल से निकाल दिया है, लोगों ने इनको सिरे से नकार दिया है, लोगों ने इनके दोगलेपन को समझ लिया है. भारत की जनता जान चुकी है कि ये पीठ के पीछे खंजर भोंकने वाले लोग हैं. और उसका ही सारा जो है, इतने वर्षों का जो भारत की जनता के मन में जो इन लोगों ने जहर का बीज बोया है, तो वो बढ़ते हुए आज ये रूप लेके आया है कि इनका बॉयकॉट हो रहा है. हाँ, तो अगर आप ये कार्टून देखें काजल जी, देखें तो ये तो एक फिल्म नहीं है. टॉकिंग अबाउट सम्राट पृथ्वीराज, शमशेरा, एक विलन रिटर्न्स. So this is just going on, and Shamshera. In fact, Sanjay Dutt wrote a big letter, saying that, see, he stands with the film director and he stands with the actors for the film, even if it doesn't become a hit. And now they are so bothered about it. When we wanted their support for something very important, they disappeared. They stood with the cabal. मीना जी, एक आप देखिए कि सुशांत सिंह राजपूत कितना प्योर सोल था कि इन्होंने उनके साथ, बॉलीवुड ने मिलकर जो उनके साथ किया, जब से सुशांत सिंह हमारे बीच से चले गए, आप तब से ट्रेंड देखिए, तब से बॉलीवुड की सारी फिल्में पिट रही है, बॉलीवुड एक्सपोज हो रहा है, बॉलीवुड को जनता जो है, भारत की जनता इनको दिल से निकाल के फेंक दी है. और ये जनता जो है, ऐसा नहीं है कि फिल्में देखना बंद कर दिया है, फिल्में तो देख रही है. देखो आप, साउथ की फिल्में जब यहाँ पे आती है तो कैसी हिट हो जाती है. तो ये है कि जब आप प्योर सोल के साथ कभी गलत करते हो ना, तो भगवान कहते हैं ना कि उसकी लाठी में कभी आवाज नहीं होती. तो ये हो रहा है इनके साथ में.
इन्होंने अन्याय करा था, इनको जवाब मिल रहा है अब। आप ये भी आपको ये भी याद है ना कि ये जब इसने करीना कपूर ने एक इंटरव्यू दिया था बरखा दत्त को और बोला था कि अगर लोग नहीं आएंगे थिएटर में तो वो ठीक है, हमें नहीं चाहिए ये लोग। वो तो मैं कैसे भूल सकती हूँ, यू ओनली उसकी स्टाइल, यू ओनली मेड अस स्टार्स ना, डोंट गो एंड वॉच योर मूवी ना, कौन आपको बोल रहा है कि आके देखो। दिस इज द एग्जैक्ट टोन व्हाट शी हैड यूज्ड दैट टाइम, क्योंकि उसको पता था कि भाई जख मार के हिंदू तो बेवकूफ बैठे हैं, जख मार के आएंगे। तैमूर की अम्मी को, जहांगीर की अम्मी को ऐसा लगा कि वो, आपने एक उसका पुराना इंटरव्यू देखा जिसमें कह रही है लाइक तैमूर, लाइक वॉरियर, लाइक कॉन्कर, मतलब जो हिंदुओं का कत्लेआम नरसंहार जिन्होंने किया है, उसकी अम्मी अगर ऐसे बोल रही है। और अभी भी आपने देखा इनका कल का इंटरव्यू, 1 या 2 दिन पहले करीना ने करा, कहा है कि पुरानी बातें मूव ऑन करना चाहिए। तो मूव ऑन वाले लॉजिक से तो कल फिर तो 26/11 का जो मास्टरमाइंड, 9/11 का जो मास्टरमाइंड था, उसको यूएस ने ड्रोन से मार दिया, लादेन के राइट हैंड को। तो क्यों मारा, भुला देते भाई, इतने सालों पहले करा है। उस लॉजिक से तो हम दाऊद को भी भुला दे भाई, 93 में ब्लास्ट किया था। तो उस लॉजिक से तो एक एक को छोटा राजन से लेके एक एक को छोड़ दो ना, सबने पहले करे है। तो ये जो हमें बेवकूफ बना रहे हैं ना, इनको लगता है कि अब वो ये पुराना वाला भारत है जिसको बेवकूफ बनाते जाओ और भाईचारे का चूरन चटवाते जाओ। तो ये नया भारत है, ये बॉयकॉट भी करेगा, ये जूते भी मारेगा, ये सिरे से बहिष्कार भी करेगा, और ये जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में इनको समझाएगा, क्योंकि ये नया भारत है। एक इंटरव्यू था जो आई डोंट नो वेदर यू सॉ इट, इन विच यू नो द सन ऑफ ममूटी, यू नो केरला एक्टर, टॉप एक्टर, उसका बेटा आया था और ये करीना कपूर सब स्टेज में बैठे थे और उसने दुलकर, उसका नाम दुलकर है, तो दुलकर ने बोला कि ये मेरा नाम दुलकर है, दुलकर सलमान। तो इन्होंने पूछा कि ये अजीब नाम है, किधर से मिला? तो उसने बोला कि ये एक अरब नाम है। So Karina fell flat. Yeah, just like Taimur and Jahangir and all these names. So they've kept on going, you know, going so happy that these names are, you know, being given to children who belong to India. You know what, अब तो मुझे भी ये लगता है कि ये तैमूर और जहांगीर की मम्मी को, जो बाबर और औरंगजेब और जहांगीर की नाजायज औलादे हमारे देश में पल रही है ना, कि जिनकी अम्मियों ने तलवार के जोर पे अपने सलवार खोल दिए थे, उनसे ही मूवी दिखाओ ना, उनसे ही मूवी दिखाकर अपनी मूवियों को से पैसा कमाओ ना, हमारे पास क्यों रोते हुए आ रहे ना। तो वी आर सिंग, पहले वो बोल रही थी ना, डोंट वॉच योर मूवी, नाउ वी आर सेइंग वी आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल टू वॉच योर मूवी, प्लीज डोंट कम टू अस, प्लीज डोंट बेग इन फ्रंट ऑफ अस, प्लीज डोंट से प्लीज प्लीज हमारी मूवी देख लो ना, लाइक आमिर खान सेड 2 days बैक कि प्लीज मेरी मूवी का बहिष्कार मत करो, मैं तो बहुत बड़ा भारतीय हूँ। मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये हमारे गुजरात में हुआ है मीना जी, कि जब गुजरात में नर्मदा का पानी जो है, जब गुजरात में लेने की बात हो रही थी, तो सोनिया गांधी और कांग्रेस ने सबसे बड़ा विरोध किया था। नर्मदा का पानी गुजरात में ना आए, इसके लिए बकायदा आमिर खान, तिश्ता, सितलवाड़, इन सब लोगों ने धरना प्रदर्शन करा था और चिट्ठियां लिखी थी और ये सड़कों पे बैठ गए थे। मतलब सबसे पहले तो ये नर्मदा माता के विरोधी, नंबर 2 ये किसान विरोधी, क्योंकि ये नहीं चाहते थे गुजरात का किसान फले फूले। नंबर 3 ये गुजरात के विरोधी, गुजरातियों के विरोधी। और इन्होंने, आमिर खान ने एक अपने इंटरव्यू में कहा, जो कि अभी वापस वायरल हो रहा है, कि 59 कार सेवकों को गुजरात गोधरा की ट्रेन में बोगी में जिंदा जला दिया, साबरमती एक्सप्रेस में गोधरा में, वो कुछ नहीं था। और उस एक्शन के रिएक्शन में जो कुछ भी हुआ, उसका टोटल जिम्मेदार हिंदू को बताते हुए नरेंद्र मोदी पर, देश के प्रधानमंत्री जो अब है, उस वक्त के यहाँ के गुजरात के मुख्यमंत्री थे मोदी जी, तो उनपे ठिकरा ढोल दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है मेरा कि आमिर खान जी, ऐसा है कि आपका तो जो घड़ा है ना पाप का, वो भर चुका है कि आप गुजरात के विरोधी, आप मोदी जी विरोधी, आप नर्मदा माता के विरोधी, आप गुजरात के किसान के विरोधी हो, आप हिंदुओं के विरोधी हो, आप इंटॉलरेंट कहते हो, आपको इस देश में डर लगता है, आपको ऐसा लगता है कि हिंदू जो है वो असहिष्णु है। आपकी पत्नी को इतना डर लगता था कि आपकी पत्नी आपके साथ भी सेफ फील नहीं कर रही थी, इसलिए आपकी पत्नी ने आपको डिवोर्स भी दे दिया, आपकी पहली पत्नी ने भी दिया, आपकी दूसरी पत्नी ने भी दिया। तो आपको ये सोचना है कि आप औरतों के लिए कितने खतरनाक हो कि आपके पास आपकी बीवियां भी नहीं टिकती है, आपके पास आपके बच्चे भी नहीं टिकते, आपके बच्चे भी अपनी माताओं के साथ रहना पसंद करते हैं।
तो आपका जो ये ना पीके में जो पी करते हुए आप हमारे भगवान की तस्वीर दिखा रहे हो और ये कह रहे हो कि देखो हम मुसलमानों की पी तो तुम्हारे भगवान से भी महान है, हमारे भगवान को हमने ऐसा दिखाया था पीके में, और अब आप है ना हमें ये सारी प्लीज कर कर तो हम ये कहते हैं कि भाई ऐसा है, आप हमें 80 करोड़ को माफ करो, आप अपने जो 20 करोड़ जो तैमूर और औरंगजेब की जो लेगेसी यहाँ पे चली आ रही है ना, उनसे ही अपनी पिक्चरें दिखाओ। बट सॉरी, मैं तो भूल गई मीना जी, वो तो पंचर छापे, पंचर साटते हैं, वो कहाँ से पिक्चर को करोड़ों रुपए दिलवाएंगे? मल्टी मिलियनर हिंदुओं के पैसों पे बने हो और गाने बजाने इनके नाम के करने हैं, तो ये पंचर साटने वाले मदरसा छाप पंचर छाप को ही कहो कि आपकी फिल्म देखे और उसको सुपर डुपर हिट बनाए, तो हम माने कि मुगलों ने हमारे पे 800 साल राज किया और यही मुगलों ने तुम्हें 800 करोड़ भी कमा के दिए, है ना? Am I right or wrong, Meena ji? Yeah, bilkul. And look at what Zoya is saying. Karina had also openly said that they don't force the public and don't care if we go and watch their movies. So there you go. We're not coming to watch your film. Why are you begging us now? Yeah, yes, of course. And also, आपको ये भी मालूम है कि रक्षाबंधन अक्षय कुमार की फिल्म अभी it's on, and the script has been written by a lady called Kanika Dhillon. She is so anti-Hindu, and they want us to see his film. Now, every time, the Twitter used to go saying that boycott Akshay Kumar. Now they don't even bother. He is a देशद्रोही Canadian Kumar. तो कोई नहीं जाएगा. और उसके ऊपर ये औरत की स्क्रिप्ट जो एंटी हिंदू है. मीना जी देखिए, अक्षय कुमार सम्राट पृथ्वीराज बनाता है. ऐसा नहीं है कि भारत की जनता पृथ्वीराज जी को मानती है, उनका आदर सम्मान करती है, मगर फिर भी इसकी पिक्चर क्यों पिटी? क्योंकि देश जो है, देश की जनता जो है, वो अब बॉलीवुड की असलियत जान चुकी है, सिरे से बॉलीवुड को बॉयकॉट कर चुकी है. फिर चाहे अक्षय कुमार हो या आमिर खान हो, नो मीन्स नो. अब हम कहते हैं नो मीन्स नो. और सम्राट पृथ्वीराज में भी इन लोगों ने 75% फालतूगिरी और प्यार इश्क ये सब दिखाया है और उर्दू डायलॉग्स यूज किए हैं. और जो शौर्य सम्राट का दिखाना चाहिए था, वो शौर्य तो इन्होंने 15-20% भी नहीं दिखाया है मीना जी. तो ये इनको लगता है अक्षय कुमार जो है थोड़ा सा चापलूसी करके उसको लगता है कि उसकी फिल्म हिट हो जाएगी, तो वो तो कतई नहीं होगी. और एज फार एज ये ढिल्लन कनिका ढिल्लन इज कंसर्न, तो उसका तो वैसे भी हम लोग उसको सीरियसली लेते हैं नहीं. हमने तो अक्षय कुमार की सम्राट पृथ्वीराज को भी नहीं चलने दिया. And also, she is busy removing all her tweets. Yes. So Kajal, see, it's not only in Amir Khan's movie. Kareena Kapoor has a lot of views on other things also, So we are talking about the famous Ranveer Singh photo shoot where he comes in complete nudity. And it is not only her, but you have every other actress supporting him. Now, Kareena Kapoor has reacted to it by saying that people have a lot of free time, as everyone has an opinion on everything, So that is why they are criticizing this man. Now, he became a controversy because of this photo shoot. Now, and people said that it hurt the sentiments of women. Now, speaking with media, she said, it is an open ticket for everyone to discuss and have debates. I feel like everyone has a lot of free time too, because everyone has an opinion on everything. I don't know why it is such a big take. Like I said, it just proves that everyone has a lot of free time. And on top of that, women like Rakhi Sawant said, see, why don't you allow us to enjoy? So she's saying, you're so crazy, so funny. We love to enjoy such show. Let us at least enjoy the fact that we can see a man nude and he is so hot. विद्या बालन ने भी कहा है ना ऐसा कुछ. विद्या बालन ने कहा ना, हमें भी तो आंखें सेकने दो. तो अभी तो because their movies are not becoming hits, they have nothing to do. So they have nothing to lose also. So it seems like all of them are dropping their clothes now, to get some attention. और करीना जो ये कह रही है कि लोगों के पास बहुत फ्री टाइम है, तो वो सबका अपना एक अलग ओपिनियन है, तो उस लॉजिक से तो करीना इतनी वेली थी कि आशिफा का जो मैटर हुआ था उसमें वो बकायदा प्ले कार्ड लेके खड़ी थी कि आई एम हिंदुस्तानी एंड आई एम अशेम्ड. मंदिर में जो है आशिफा के साथ जो हुआ उसके अगेंस्ट में उसने वो सारा करा था.
तो वो भी इतनी वेली है ना, तभी तो प्ले कार्ड लेकर अपना वो एक अलग एजेंडा चला रही है। वो भी इतनी वेली है ना कि हर एक मुद्दे पे आके वो भी बोल रही है ना। तो जब वो अपना ओपिनियन दे सकती है क्योंकि वो तैमूर की अम्मी है, तो हम नहीं अपना ओपिनियन दे सकते, है ना? तुम अम्मी होगी तो अपने घर पे होगी। और दूसरी बात के जहां तक न्यूड फोटोशूट का रणवीर सिंह का जो सवाल है, तो इसमें मेरा ये मानना है कि बॉलीवुड की बहुत सी एक्ट्रेस न्यूड फोटोशूट करती है। मैं कहती हूँ ये आप इस तरह का करते क्यों हो कि आप आपके घर में आपकी माँ बहन, आपकी बेटी, आपके बच्चे साथ में, ये आपका फोटोशूट क्या देख पाते होंगे? क्या आप उनके सामने कर पाते हो ये चीज? नहीं कर पाते। तो जब आप उनके सामने ये नहीं कर पाते तो आप पब्लिक में ये चीज करते क्यों हो? मेरे लिए फिर वो मेल फीमेल फर्क नहीं पड़ता, चाहे रणवीर सिंह हो, चाहे राखी सावंत हो, या वो उर्फी जावेद हो, इवन तो क्लीवेज तो ये करीना और सोनम कपूर और इन लोगों ने तो हर तरह की गंदगी करी है ना फिल्मों में। तो ये तो चीजें ऐसा है कि भाई आप रणवीर हो या कोई भी हो, ये चीजें हमारी, मुझे नहीं लगता कि ये वो चीज है कि जो हमें वो दिखाकर हम अपने आप को ज्यादा वेस्टर्न प्रूव करना चाहते हैं। भारतीय संस्कृति की झलक आप दिखाते हुए भी, जैसे तानाजी फिल्म आई थी तो क्या सुपर डुपर हिट हुई थी, तो वो फिल्म एक अलग छाप छोड़ के गई थी। तो इस तरह की मूवी भी आप पीरियड मूवी बनाकर भी अपने आप को ज्यादा अच्छा निखार कर दिखाकर भी आप कर सकते हो। लेकिन इनको क्या है कि इनको हमारे जो यूथ है ना उनको खराब करना है, उनका दिमाग इनको खराब करना है। और अब तो रणवीर सिंह इतना वेला है क्योंकि कंटिन्यू सारी फिल्में इसकी फ्लॉप हुई, तो फोटो शूट से ही भले ही 2-4 करोड़ की जो आमदनी हो गई सो हो गई, वो करके वो कर रहा है। तो इसके सामने उर्फी जावेद भी क्या कर रही है, हर रोज सड़कों पर नंगी निकल जाती है ना, और उसी के पैसे इसको मिल रहे हैं। तो इनको करने में शर्म नहीं है, हमें बोलने में काहे की शर्म है। और ऐसे लोग क्या होता है ना कि जब कुछ नहीं होता तो फिर पूरा अटेंशन सीकर है ये लोग, तो लाइमलाइट इनके जीवन का हिस्सा है। अगर लोग इनको भूल जाए, वो इन्हें पसंद नहीं है, तो अटेंशन लेने के लिए ऐसे ऐसे करते हैं। जैसे रत्ना पाठक है कि पूरी जिंदगी में इतनी पॉपुलैरिटी नहीं कमाई नसरुद्दीन शाह की, उसने रत्ना पाठक यानी रजिया शाह ने, तो उसने इस तरह का दे दिया। अरे भाई तुमने हिंदू से शादी नहीं करी, तुम्हें क्या लेना देना हम करवा चौथ मनाए या ना मनाए? तुम अपने मजहब का देखो ना। तुम शादी करके जिस मजहब में गई हो वहां आज भी 3 तलाक देते, वहां आज भी पूरी पूरी रात मौलवी हलाला करता है, वहां आज भी सास ऐसा कहती है कि मेरी अब उम्र हो गई है तो बहू तू मेरे पति को खुश कर दे। वहां घर में एक पत्नी को जेठ के साथ भी सोना पड़ता है, देवर के साथ भी सोना पड़ता है, ससुर के साथ भी सोना पड़ता है, और घर की बात घर में रह जाए और फिर मोहल्ले को भी खुश करना पड़ता है, मौलवी को भी खुश करना पड़ता है। तो रत्ना नसरुद्दीन शाह को ये चाहिए कि वो अपने जो मजहब में वो गई है उस मजहब को थोड़ा सा सुधारे। वो जितना रिग्रेसिव बनता जा रहा है, ऑर्थोडॉक्स बनता जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि आज भी वो सीरिया काल में और सऊदी काल में ही जी रहा है वो भारत का मुसलमान। तो उसको थोड़ा सा वो कर दे, क्योंकि अभी एक लड़की ने, मुस्लिम लड़की ने शंभू शंभू गाना गाया, उस पर मौलवी ने फतवा निकाल दिया। तो मुझे लगता है कि नसरुद्दीन शाह और उसकी बीवी को ऐसे सब जो कंजर्वेटिव और ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, ऐसे जो रेडिकल लोग हैं, उनके समाज के, उनको सुधारने में टाइम देना चाहिए। हमारे में तो हमारे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो हमें अच्छी शिक्षा दे ही देते हैं, हमें जरूरत नहीं है इनकी शिक्षा की। Yeah, absolutely. Yeah. So let me just take you to an earlier cartoon. Yeah. So Abhi, काजल जी, मुंबई में तो बहुत सी चीजें हो रही है, एंड इसमें से मोस्ट funny was this act. How he came out, with his saffron, what do you call, a shawl or whatever it was, and waving as though he was Devanand, coming out to sing a song. इसका क्या कर सकते हैं? ये इतना पागल है, ये अपनी लाला लैंड में जीता और इसने पूरी पार्टी की वाट लगा दी। इसने ठाकरे परिवार की जो लेगेसी थी उसकी वाट लगा दी। ये ऐसा संजय है कि जिसने, भगवान ने जिसको आंखें दी थी पर इसने अपने आंखों का इस्तेमाल नहीं किया, ये खुद अंधा बना रहा। और जो इसका बॉस था वो उद्धव ठाकरे, उसको भी बेचारे को कहीं का नहीं रखा। और ये ना, इट इज वेरी इजी। एक मैंने कहीं पढ़ा था
कि सामना में लिखना तो बहुत आसान है, लेकिन ईडी का सामना करना बहुत मुश्किल है। और ये तो अभी काजल, दिस इज द प्रेजेंट, ओके, नाउ दिस विल बी द फ्यूचर. या हाँ, सबके दिन आएंगे, ये हर पेंगुइन का दिन आएगा। And the funny thing is, Penguin says that he supports Sanjay Raut on what? On corruption? No, What is because he only saying? Sanjay Raut has left ना to support him. एक शिवसेना में सिर्फ सैनिक खाली 2 ही तो बचे हैं, और उसमें भी उसको सपोर्ट नहीं करेगा तो वो भी छोड़ के जाएगा ना. So he has no option left. That's why he's supporting him, Sanjay Raut, right? Absolutely, yeah. Meanwhile, Karan Johar says that he hates Hindi-speaking people, and he considers them low class. This is when he got his. This is where he got his name, fame, and money through Hindi films, and he says he hates Hindi. तभी तो अब उसकी फिल्में हिंदी जो वो बना रहा है, लोग हाँ. कह रहे हैं जब तुम्हें पसंद ही नहीं है तो हम काहे तुम्हारी हिंदी फिल्म देखें, Absolutely, है yeah. ना. तो वो करण जौहर तो बेचारा इतना ग्रिल हो चुका है कि अब तो उसको मतलब कॉफी विद करण जैसे शो बनाकर नेपोस्टिक उन किड्स को बुलाकर ही अपने शो को चलाना पड़ेगा. लाइक आलिया एंड वो पांडे, चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे, एंड देन सारा अली खान, और इनको ही बुला के वो अपना शो चला रहा है. उससे उसकी रोटी, दाल रोटी का निकलेगा जुगाड़. पिक्चर अच्छा. उसकी कोई देख नहीं रहा है. उसका शो भी कोई नहीं देख रहा है. कॉफी विद करण. कॉफी विद करण भी कोई नहीं देख रहा है. काजल, see, something I don't understand, जो बॉलीवुड में अभी हो रहा है, when the Hollywood coming into Bollywood, and taking South Indian actors like Rajinikanth son-in-law. अब इसमें क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ हो रहा है, क्योंकि ये जो डायरेक्टर्स आ रहे हैं, प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं हॉलीवुड से, और इनके साथ ये जो लड़कियां हैं वो ये ड्रेसिंग विद हार्डली एनी क्लोथ्स, दे कमिंग इन clothes that are there or not there, we don't know, and posing with these South Indian actors. What is happening? There is some strategy that is happening here that we do not understand. मीना जी, इसमें एक हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जो जैसे हमारे यहाँ पे एक लेफ्ट लॉबी है, वो लेफ्ट लॉबी जो है वो विश्व के हर एक देश में है. इजराइल में भी है, और वो यूएस में भी है, वो यूके में भी है, हर जगह है. अब ये जो लेफ्ट लॉबी है वो अपना काम करती है क्योंकि उसका अपना एक एजेंडा और उसको फंड बहुत आता है. जहां तक हॉलीवुड का सवाल है, तो हॉलीवुड में बहुत बड़ा फंड जो है वो जॉर्ज सोरस का जाता है, फोर्ड फाउंडेशन का जाता है, और यही कारण है कि हमारे भारत के मुद्दों पर वहां से ट्वीट्स होते हैं या वहां से स्टेटमेंट आते हैं, वहां के एक्टर्स भी देते हैं. तो कहने का मेरा मतलब ये है कि लेफ्टिस्ट को पता है कि इनका जो एजेंडा चल रहा था, वो एजेंडा ये लोग जो बॉलीवुड मीडिया वाला मीडिया का एजेंडा चलाता है, और हॉलीवुड बॉलीवुड ये अपना एजेंडा चलाते हैं, पॉलिटिशियंस अपना एजेंडा चलाते. तो जब आज हम बॉलीवुड और लॉबी की बात कर रहे हैं, तो लाइक ये जो है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, तो वैसे हॉलीवुड की भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो लेफ्ट से ज्यादा प्रभावित है, और उस पर लेफ्ट का ज्यादा प्रभाव है. तो अब क्या है कि भारत का जो लेफ्टिस्ट है वो हॉलीवुड के लेफ्टिस्ट के पास गया है कि भाई हम डूब रहे हैं, हमें बचा लो. हमें मतलब कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा. तो वहां की जो लेफ्ट लॉबी है वो यहाँ आ रही है, पर इनको वो लेफ्ट लॉबी कितना सहारा देगी? एक फिल्म में या 2 फिल्म में, उससे ज्यादा नहीं देनी है, और उससे ज्यादा वो देगी भी नहीं. उसको पता है वो खुद बर्बाद हो जाएंगे. तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई चोर चोर मौसेरे भाई, तो यहाँ का लेफ्टिस्ट हो या यूएस हॉलीवुड का लेफ्टिस्ट हो, वो तो लेफ्टिस्ट तो वही है, इसलिए ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. दूसरी बात एक मैं ये भी कहना चाहती हूँ, जो आपके सवाल से बिल्कुल विपरीत है, कि आमिर खान की इस फिल्म का ट्रेलर तो हम सबने देखा. मैंने रियल फॉरेस्ट गम भी देखी है, और मैंने फॉरेस्ट गम का जो एक्टर है टॉम हैंक्स, उसकी भी मैंने बहुत सारी फिल्में देखी है. मेरे को उसकी फिल्में देखने के बाद में जो रियलाइज हुआ, वो ये रियलाइज हुआ कि आमिर खान जब से इंडस्ट्री में आया है, मीना जी, बहुत लोगों को नहीं पता, वो टॉम हैंक्स की कॉपी ही करता है एग्जैक्टली. अच्छा, टॉम हैंक्स जो है वो बहुत सीनियर एक्टर है, अब तो उनकी उम्र भी काफी हो गई है, तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली आमिर खान ने जो भी फिल्में बनाई है, उसने टॉम हैंक्स की फिल्में चोरी करी है. हाँ, उसकी फिल्में चोरी करी है, वो स्क्रिप्ट चोरी करी है, और उसी पर उसी में वो फिल्म बनाता है, और वो एक्टिंग भी बिल्कुल
बिल्कुल टॉम हैंक्स जैसी करता है। तो ये जो है ये हॉलीवुड के से कंटेंट चुराते हैं और ये जो है उनकी क्लोन कॉपी है, क्या कहते हैं कि डुप्लीकेट कॉपी है। तो इसका जो डुप्लीकेट है ये आमिर खान। तो आमिर खान खुद कोई नहीं, आमिर खान को कोई एक्टिंग नहीं करनी आती है। इसका वही टॉम हैंक्स का जो एक्सप्रेशन रहता है वही आमिर खान करता है। तो मैं जो आपके दर्शक है उनसे मैं कहूंगी कि प्लीज आप है ना इसकी फिल्म मत देखिए। इससे अच्छा है आप फॉरेस्ट गम की जो एक्चुअल उसकी टॉम हैंक्स की जो एक्चुअल मूवी है फॉरेस्ट गम वो देखिए। और वो हिंदी में अवेलेबल भी है वेब इस पे मतलब आई थिंक अमेजोन पे होगी या शायद हॉटस्टार पर किसी पर है, तो उस पे देख लीजिए। मगर इसकी मत देखिए क्योंकि एक तो इसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं, अपने आप को मिस्टर परफेक्शनिस्ट तो कहते हैं पर ये है नहीं, इनके कोई क्रिएटिव नहीं है। ये एक नंबर के चोर, बाजार के जो चोर होते हैं ना वैसे ये फिल्मी बाजार का चोर है आमिर खान, जो कंटेंट चुराता है। और हूबहू इसने वही कंटेंट चुराया है। तो एक लोगों के दिमाग से एक ये भी दूर हो जाए कि वो कोई सुपर एक्टर है या बहुत इंटेलिजेंट है, तो नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ एक चोर है जो कंटेंट चुराता है और इवन एक्टिंग भी कंटेंट में ही चुरा के करता है। टॉम हैंक्स की ही वो कॉपी है करता है। Okay. But what do you think is the reason why they are wooing South Indian actors? You know, like all these top heroes. Why are they going behind them? और वो अभी आरआर वाला भी जो था वो राजा मौली, वो भी इसका एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, इसकी फिल्म का प्रमोशन कर रहा है। क्योंकि ये क्या है ना, साउथ वाले के पास जाके भीख मांग रहे हैं ना। ये वही बॉलीवुड है जो पहले साउथ को उसके कलर के लिए, क्योंकि साउथ वाले ब्लैक होते हैं तो उनके कलर्स के लिए, उनके कलर के लिए उनपे हंसते थे, वो लुंगी पहनते थे इसलिए ये लोग हंसते थे बॉलीवुड वाले। और अब आप देखो कि ये बॉलीवुड वाले उनके पास जाके मिन्नतें कर रहे हैं। तो साउथ वाले तो बेचारे वैसे ही भगवान के भक्त होते हैं, भोले के भक्त होते हैं साउथ वाले। तो उन्हें लगता है ना जैसे भोलेनाथ तो क्या थे, बोले थे वो तो देवों को भी आशीर्वाद देते थे और दानवों को भी आशीर्वाद देते थे। तो साउथ वाले बेचारे सोचते कि चलो ना अभी आमिर खान इतनी भीख मांग रहा है तो हम थोड़ा सा इनका प्रचार कर ही देते हैं, काइंड ऑफ, इसलिए साउथ वाले कर रहे हैं। बाकी आलिया भट्ट को लिटरली उस फिल्म में लिया था आरआरआर में, आलिया भट्ट को कोई यस, और आलिया भट्ट उससे बहुत चिढ़ भी गई थी। आलिया भट्ट ने उसको अनफॉलो भी किया क्योंकि आलिया भट्ट के उसमें उससे काम तो बहुत करवाया लेकिन सीन बहुत उसके काट दिया आलिया भट्ट के। तो इनको औकात दिखाई, मतलब लेकर इनको औकात दिखाई, ना लेकर तो ये जीते हुए। तो मजा कब है जंग में, जब इनको इनकी औकात दिखाए। तो अब साउथ वाले इनको इनकी औकात दिखा रहे हैं। एग्जैक्टली। In fact, Kajal, Rajamouli asked Karan Johar on stage, आपको इतना पैसा किधर से आ रहा है ऐसे फिल्म्स प्रोड्यूस करने को, you know, and he didn't have an answer, you know, he didn't have an answer. और आपको एक और बात पता है कि जैसे करीना ने बोला था कि मत देखने जाओ मेरी फिल्म, वो कब इतने गट से कहती है, क्योंकि पैसा बाहर से आ ही रहा है। तो इनका मकसद फिल्में बनाकर पैसा कमाना नहीं है, पैसा तो आ गया है बाहर से। इनका मकसद है फिल्में ऐसी बनाओ कि हिंदू खुद पे अशेम फील करे, एपोलोजेटिक फील करे, खुद को बैकवर्ड फील करे, खुद को रिग्रेसिव फील करे, और उसकी जो पीढ़ियां है उसको अपनी संस्कृति पे शर्म आए। उसके सामने साउथ को आप देखो कि साउथ कैसे हमारी संस्कृति को बचाए हुए है और किस तरह से फिल्मों में वो हिंदू देवी देवताओं को और हिंदू रिचुअल्स को, हिंदू कल्चर को, हिंदू अटायर को ग्लोरीफाई करते हैं, बकायदा धोती पहन के उसको ग्लोरीफाई करते हैं। और यहाँ पे तो ये धोती पहनाने, उसी को ही धोती पहनाते हैं जिसको बलात्कारी दिखाना है। ये उसी को तिलक लगाते हैं, जिस तिलक वाला दिखाएंगे जिसको गुंडा दिखाना है या आतंकवादी दिखाना है या बलात्कारी दिखाना है या बहुत बड़ा मतलब वो कोई होता है ना सूद वसूल करने वाला बनिया, वैसा दिखाना है इनको। तो तभी ये यूज करते हैं। तो ये इसलिए गट फीलिंग से कहते हैं। और मैं आपको बताती हूँ, अगर इसने नाम तैमूर और जहांगीर भी रखा है ना, तो उस नाम के पीछे का भी कारण है। कौन रखता है ऐसे इतने पुराने नाम, इतने बकवास नाम, और जिसका एक इतिहास भी पता है कि ऐसा रहा है। पैसा आया है, पेट्रो डॉलर, इसने तो अपने बेटे को बेच दिया है। करोड़ों रुपए लिया होगा तैमूर नाम रखने के और करोड़ों रुपए लिया होगा जहांगीर नाम रखने के। In fact, you know, Kajal, let me tell you something here. What you said is so true. Because, see, as an artist, I paint a lot of pictures. One picture that I painted was of Draupadi, you know, before the Mahabharat war, you know. And it is you know, beautiful look that she gives. But she's also very arrogant as she looks at the warriors getting ready,
for the war. So this is a painting that I will not put in my living room because, it is about negative, negative feelings. You see, like you said, see, why do we put the pictures of gods, or saints in our rooms? Because they bring good vibes. Similarly, in South, as you say, the movies show all this because they want to bring good vibes into the film. Anything that's negative, they will not want to display it the way the Bollywood is doing it. एंड मीना जी, आप तो देखो कि जैसे कंगना है तो खुलकर अपने व्यू रखती है, वो मतलब उसका पॉलिटिकल व्यू ज्यादा रहता है कंपेयर टू हिंदुइज्म, क्योंकि कंगना को मैंने कभी मतलब जो एक दूसरा है मजहब उसके खिलाफ बोलते हुए नहीं सुना है, उनके लोगों के खिलाफ भी बोलते हुए नहीं सुना है। लेकिन कंगना ने जिस तरह से एकता के साथ वो शो करा लॉकअप, और उसमें जानबूझ के मुनावर फारूकी की दुकान बंद हो गई थी तो मुनावर फारूकी की दुकान चलाना, उसको ग्लोरीफाई करना, उसको विनर बनाना, तो लोगों ने कंगना को भी फेंक दिया ना। एक नहीं दो फिल्में कंगना की पिट चुकी है। तो कंगना को ये लगता है कि मोदी जी का गुणगान करके या योगी जी के साथ तस्वीरें खिंचवा के या ठाकरे परिवार को गालियां देकर वो हिंदुओं के दिल में जगह बना देगी। सॉरी, हिंदुओं के लिए पार्टी पद सब कुछ बाद में है, हिंदुओं के लिए हिंदुइज्म और हिंदुत्व की प्रतिष्ठा सबसे पहले है, और जो इसके साथ खिलवाड़ करेगा वो पीसा ही जाएगा। ये समझ ले, कंगना भी हो, अक्षय भी हो, क्योंकि अक्षय कुमार आर्मी का झंडा लेकर वो अपना एक अलग सैनिक प्रेम दिखाता है, कंगना जो है वो बीजेपी प्रेम दिखाती है। तो बीजेपी प्रेम दिखाने से भी आप हिंदुओं के दिल में जगह नहीं पाओगे, आप आर्मी का प्रेम दिखाकर भी हिंदुओं के दिल में जगह नहीं पाओगे। आर्टिस्ट की बात कर रही हूँ। आप तभी हमारे दिल में जगह बना पाओगे जब आप हमारी बात करोगे और सही बात करोगे और सही बात के साथ खड़े रहोगे। हिंदुओं ने बहुत संघर्ष कर लिया वर्षों से, पर अब जो हमारी पीढ़ियां तैयार हो रही है, बिलीव मी मीना जी, ऐसी अपब्रिंगिंग या ऐसा जो एक नया हिंदुत्व अब हमें देखने को मिल रहा है, ये जब आप और मैं छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स से शायद ऐसा नहीं मिला है जैसा अब मेरे बच्चों को या आपके बच्चों को मिल रहा होगा कि धर्म के लिए कैसे हमें खड़ा रहना चाहिए, धर्म की प्रतिष्ठा के लिए कैसे खड़ा रहना चाहिए, हमारे देवी देवताओं के इतिहास और उनसे खिलवाड़ करने वाले लोगों के साथ हमें कैसा जवाब देना है। तो ये सब हम हमारे बच्चों को मिल रहा है। तो जो हमारी पीढ़ियां तैयार होगी ना, वो हमसे भी ज्यादा धर्म की रक्षक बनेगी। आई एम वेरी श्योर फॉर दैट। Kajal, see, I agree with you on this, but in the government, there are many people who encourage these very people. They put them on a pedestal more than the real heroes. So that is something we cannot prevent because they keep flaunting them in our faces. Now, let me just show you a few cartoons. I always show it to my viewers. Maybe you might agree or you don't agree, Kajal. It's up to you, okay? So let me just show you the next. Yes. So here you can read. See, she says, "They insulted my daughter, my lords. Take action." And Sushant from heaven says, "Hey Bhagwan, I died 2 years and 1 month back, and judiciary is still quiet. Saas bhi kabhi bahu gets the courts to act in a day." So this is one cartoon, okay? Second one, it is all a chain. This is happening in Lok Sabha. So people are asking why she's shouting like this. What happened to her? So one of them is saying, diverted from matter of own daughter to nation's daughter, silly soul. Okay. So these are cartoons, okay, on a lighter note, Kaja. And this one is, when a critic comes to the restaurant and has his food there. So now the fight is all going on. So the lady says, "This donkey had to come now, and the man has already had his food, so he burps." So these are some of the cartoons I wanted to show the people because they enjoy my tunes. Okay. Now, what I wanted to say, going back to another issue, Kajal. See, it is absolutely something that we should be ashamed of. That what is happening in West Bengal.
जो पार्था का हो रहा है, it is not only Partha, it is happening in Kerala, it is happening everywhere. Though I'm a woman, I don't like to say it, but I would like to still say that our prostitutes ruling India, because apparently they have the money power and they have all the qualities in them to make politicians do exactly what they want. For example, today, one lady said she wanted to throw a shoe at Partha because he had taken all the money out of the estate and kept it for himself, and the state is poor. So what is happening, Kajal? See, are our politicians so weak that they want, women to tell them what to do? And if the women are really beautiful, that means that they will sell their soul and give them all the money? मीना जी, इसमें मेरा भी थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको कहना चाहूंगी, क्योंकि आप जानती है कि मैं ग्राउंड पे काम करती हूँ. तो बीइंग अ विमेन, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू सच वर्क वेयर यू हैव अ डायरेक्ट पंगा विद जिहादीज, राइट? एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द गुजरात सिनेरियो जो मेरे साथ हुआ. तो बहुत से लोगों को ऐसा लगा कि ये तो एक औरत है ना, जो बड़े बड़े धुरंधर थे, ये तो क्या ही कर लेगी, और ये क्यों अवैध कब्जे वाले मैटर में पड़ रही है. तुम औरत हो तो महिला वाला मैटर देखो ना, लव जिहाद वाले में थोड़ा वो जो तुम बोलती हो वो करती हो वो करो ना. अवैध कब्जा क्यों, तो मेरे मंदिर पे कब्जा होगा तो मैं नहीं बोलूंगी. और क्योंकि तुम पुरुष हो, तुम मर्द हो, तुम नेता हो, तुम्हारे पास में मनी पावर, मसल पावर, सत्ता का पावर, सब कुछ है, तो इसका मतलब आप मुझे सर्टिफिकेट देंगे कि मैं हिंदू हूँ और मैं अपने देवी देवता के स्थान को बचाने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए आपके पास आपकी परमिशन लेने आऊं. और मुझे जिस तरह से आप पता है, एक तरफ लड़ाई होती है जिहादियों से, एक तरफ अपने ही लोगों से इतनी लड़ाई होती है. मैं तो चारों तरफ से मुझे घेर दिया था इन्होंने, और इन्होंने मुझे डराने की, धमकाने की इतनी कोशिश करी कि पूरे गुजरात में एक भी ऐसी महिला या एक भी ऐसा पुरुष खड़ा नहीं हुआ मेरे पक्ष में. एक लाइन नहीं लिखी कि गुजरात की बेटी को किस बात के लिए डराया धमकाया जा रहा है. 6 दिन तक मीना जी हम घर से बाहर नहीं निकले. 6 दिन तक प्रोटेक्शन था और इतनी धमकियां मिल रही थी. मेरा मतलब ये है कि आप एक महिला के लिए खड़े नहीं रह सकते. ये वही पूरी लॉबी है जो नुपुर शर्मा के लिए भी नहीं खड़ी हुई थी. ठीक है, नहीं खड़ी हुई. मेरे को कोई मैं कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है, ना ही मुझे किसी ने पीले चावल दिए थे कि आओ. मैं अपनी वॉलंटियरली, मैंने इस धर्म में जन्म लिया है और इस धर्म की रक्षा करना मेरा मॉरल ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है. लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि कुछ मर्दों को क्या लगा कि ये एक औरत है, तो औरत को अगर पार्टी में है या किसी संगठन में है या किसी मोर्चे में है, तो उसका काम क्या है? सैनिटरी पैड दो, वृक्षारोपण करो, आप उसी के लायक हो. आप 4-5 फल फ्रूट जाके हॉस्पिटल में देके आके फोटो खिंचवा के डाल दो, या आप सदस्यता अभियान में जाके औरतों को मिस कॉल करवा दो. ये उनके काम है. सॉरी, मैं उसके लिए नहीं बनी हूँ. आई एम अ वॉरियर, और मैं लड़ने के लिए बनी हूँ. और मेरे लिए नारी शक्ति की डेफिनेशन ये नहीं है कि वृक्षारोपण ही करो. वृक्षारोपण करना चाहिए, पर सिर्फ औरतों को यहीं तक बांध देना कि तुम वृक्षारोपण के ही काबिल हो, और ये यहाँ के कुछ पुरुष ऐसा सोचते हैं, तो मैं उसके लिए नहीं बनी हूँ. और मैं क्योंकि मुंहफट हूँ इसलिए लोगों को थोड़ा सा, कुछ एक लोगों को नहीं भी अच्छा लगता, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में शायद इतनी पावरफुल महिला नहीं देखी होगी कि जो ऐसे काम भी कर सकते. तो बिना उनके सपोर्ट के काम करके दिखा रही हूँ, इसलिए उनको ज्यादा तकलीफ भी हो रही है. कुछ एक तो नेता ऐसे है कि जो अपनी ऑफिस में, जो ऑफिस हैंडल करने के लिए जो क्लर्क टाइप के नहीं होते, फाइलें वाइलें बनाने के लिए, ऐसे काम के लिए महिलाओं को रखते हैं और फिर उनके साथ सोते हैं. वो महिला भी उनको खुश करती है, फिर वो महिला को कॉर्पोरेटर का टिकट और एमएलए का टिकट भी दे देते हैं, और वो महिला एमएलए भी बन जाती है. और फिर वो महिलाएं जो है वो अब मतलब चरण चाटुकारिता कर ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे वो तो यहाँ की मुख्यमंत्री है. बिस्तर गर्म करने से अगर तुम्हें चरण चाटुकारिता करना और पद मिलना है, तो इससे तो अच्छा मैं कहती हूँ साइनाइड की गोली लेके खा के मर जाओ. पर हर औरत ऐसी नहीं होती है. कुछ मेरे जैसी भी होती है, जो सेल्फ मेड होती है और जो अपनी शर्तों पे चलती है, जो चाटुकारिता नहीं करती है, और वह काम करेगी जो मुझे ठीक लगेगा. लोग क्या होते हैं ना, सलाह देते,
अरे अभी जैसे ये एक पूरा हम लोग मूवमेंट तैयार करते हैं, तो सलाह देते हैं, नहीं आप ये मत करो, आप वो, मैंने कहा मुझे सलाह ये मत करो, वो मत करो मत दो, आप मुझे बताओ कि इससे बेहतर ऑप्शन क्या है आपके पास। आपके पास इससे बेहतर ऑप्शन है तो आप वो ऑप्शन को मेरे सामने रखो, काम मत करो वो मुझे मत सिखाओ। मुझे तो मतलब पुरुषों का ऐसा होता है, और खास करके इसमें पॉलिटिक्स में ऐसा होता है कि मेल डोमिनेट है, और वो महिलाओं को समझाते हैं, सिखाते हैं, और महिलाओं को बेचारी को, इवन मैं बहुत सी ऐसी महिलाओं से इंटरेक्ट करती हूँ जो कुछ ना कुछ पॉलिटिकल लेवल पे नगर पालिका में कुछ पद पे होगी, या कहीं सरपंच में कहीं कुछ कमिटी में पद पे होगी, या कुछ कॉरपोरेशन में कहीं कुछ पद वद पर होगी, तो वो महिला कहती है कि हमें करने नहीं दिया जाता, या हमें ऐसा काम नहीं देते। मैंने कहा सी, लीडरशिप इज समथिंग विच कैन नॉट बी गिवन, यू हैव टू टेक इट, तो आपको कोई देने नहीं आएगा, आपको खुद को क्रिएट करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं महिलाओं की भी वो है कि वो दब जाती है, और वो हाँ में हाँ करती है, और उसको लगता है कि हाँ नेता जो बोल रहा है। और दूसरा क्या है कि महिलाओं से बस वो कोई मंत्री आ रहा है, कोई नेता आ रहा है, तो भीड़ इकट्ठी करो, और भीड़ महिलाओं की भीड़ इकट्ठी कर कर ले आओ, क्योंकि ये कार्यक्रम है वो कार्यक्रम है। तो ऐसा होता है, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूं, और मैं इसको उचित भी नहीं मानती, क्योंकि अगर आप नारी शक्ति की बात करते हो, आप विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हो, तो आप उनको वो एम्पावरमेंट वाला शक्ति दिखाने वाला काम तो दो, या सिर्फ नाम का ही बना रखा है। Yeah, exactly. So many of the viewers are asking, how do they become like you? So courageous. उसमें तो एक ये भी है कि मेरा तो बचपन ही, मीना जी, बहुत संघर्ष वाला गुजरा है। कि मैं 13 साल की थी तो मेरे पिताजी का डेथ हो गया, फिर मम्मी और मेरे भाई को काम करना पड़ा, तो मैं 13 साल की उम्र में, अब हम तो गांव में रहते थे, और वो जमाने में तो कोई होता नहीं था हेल्पर्स, तो झाड़ू पोछा, कपड़े बर्तन, खाना बनाना, पढ़ाई करनी, ट्यूशन जाना, सब मैं ही करती थी, अपने छोटे भाई को संभालना और सब कुछ, घर वगैरह। तो मैंने पूरा संघर्ष देखा है अपनी पूरी जर्नी में। ऐसा नहीं है कि मीना जी मुझे ऑफर्स नहीं आई है, आती है, लेकिन मैंने कभी इसलिए नहीं ली क्योंकि मैंने हमेशा जीवन में संघर्ष पसंद किया है। मेरे लिए हार जीत कभी मायने ही नहीं रखी। मेरे लिए हमेशा ये मैटर करा कि मैंने जो भी काम किया है वो ईमानदारी से किया है, दिल से किया है, अपना बेस्ट दिया है, और अपनी शर्तों पे किया है। और मुझे अगर किसी ने अच्छे सजेशन दिए तो वो सजेशन को साथ में लेके, मैं टीम वर्क में बिलीव करती हूँ, सबको साथ लेके चलती हूँ। दूसरी महिला इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि सबको शॉर्टकट अपनाना है। अब मेरी जर्नी देखो तो 25 सालों का तो मेरा अपना, 25-30 साल का मेरा संघर्ष लिटरली है, और बहुत कठिन संघर्ष रहा है। दूसरी जहां बच्चियां खेलती थी, मैं घर में 13 साल की उम्र में हाथ जला रही थी रोटियां सेकते हुए। तो वो संघर्ष जिन औरतों ने नहीं करा, वो औरतें तो पॉलिटिशियन का बिस्तर गर्म करने के बाद ही तो नेता बनेगी ना। और वो ऐसे काम भी तो नहीं कर पाएगी, मेहनत वाले काम थोड़ी होते, 4 केला देकर फेसबुक पे पोस्ट डालकर, या कहीं जाके नंबर वंबर लगाकर, या सैनिटरी पैड देकर, या एक पौधा लगाकर, अगर वो लाइमलाइट में उनको लगता है वो संघर्ष वाला काम करिए, इसलिए तो उनका नाम नहीं बन रहा है। इसलिए तो रानी लक्ष्मीबाई के बाद में एक ऐसी महिला, जब से हम आजाद हुए 1947 के बाद में, एक भारत की ऐसी महिला बता दो कि जिसने अपने दम पर अपना इतिहास बनाकर भारत के इतिहास में छाप छोड़ी। इंदिरा गांधी अपने बाप की लेगेसी पे बैठी थी, ठीक है, और इंदिरा गांधी को क्या, उस वक्त सोशल मीडिया था नहीं, होता तो शायद इंदिरा गांधी भी इंदिरा गांधी नहीं होती, वो भी पप्पू पार्ट 2 ही हो, पप्पू पार्ट 1 होती, ठीक है। तो मुझे नहीं लगा, मैंने नहीं देखा कहीं भी। तो वॉरियर्स आर लाइक कि वो खड़ा है, चाहे पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट है। और मैं स्वामी विवेकानंद जी को फॉलो करती हूँ, और मैं बिलीव करती हूँ कि जब पूरी दुनिया भी आपके खिलाफ है और आपकी लड़ाई सत्य की, और आप अकेले भी पड़ जाओ तो भी आपको लड़ना है। और एक चीज ये भी है कि एक संस्कृत में श्लोक है, अश्वम नेव गजम नेव व्याघ्र नेव श्च नेवश्च अजापुत्रम बलिम दघात देवो दुर्लभ घातकः। मतलब अश्व की यानी घोड़े की, हाथी की और बाघ की कभी बलि नहीं दी जाती, बलि हमेशा दी जाती है बकरे की, क्योंकि भगवान भी कभी कमजोरों की सहायता नहीं करता। तो मेरे लाइफ में इतनी मुश्किल भगवान ने इसलिए दी कि शायद उनको कोई बड़े काम मुझसे करवाने होंगे, इसलिए मुझे इतना सशक्त बनाया और मैं इनको फेस कर पाती हूँ। वरना एक मैरिड लाइफ जीते हुए, परिवार में रहते हुए और जॉइंट फैमिली में रहते हुए, ससुराल एंड अब बाकी सारी महिलाओं के जो 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 भी मतलब किसी पद पे, तो आप देखो कि कहीं ना कहीं ना तो सांसारिक जीवन में होगी,
या ना उनके लिए ना उनका परिवार होगा, ना बच्चे होंगे, बहुत कम, ऐसे रेयरली आपको देखने को मिलेंगे। और जो होगी भी तो उनको आपने कभी जिहादियों के खिलाफ पंगे मोल लेते हुए नहीं देखा है। मेरा तो इतना होने के बावजूद भी मैं इसलिए अड़िग हूँ क्योंकि शायद महादेव को कुछ काम करवाने होंगे और वो हिम्मत देते हैं, इसलिए मैं कर भी पाती हूँ। एंड मुझे लगता है कि महिलाओं को भी ये सोचना चाहिए कि वो जो कर रही है, क्या वो जस्टिफाई कर रही है जो नारी शक्ति का, महिला शक्ति का टैग लेके घूम रही है? क्या सच में महिला शक्ति वाला काम है? और यदि नहीं है तो महिला शक्ति वाला वो काम करके दिखाओ कि आपको इतिहास याद रखे। सिर्फ नेताओं के आगे सॉरी मेरा एक फोन आ गया था। और ये चाटुकारिता करना जैसे महुआ मित्रा और ये सब बैठकर करते हैं संसद में, तो वो मुझसे नहीं हो सकता मीना जी। Also, see, if you see in the case of Kerala, this is the same thing that happened in the gold smuggling case, जिसमें चीफ मिनिस्टर भी इन्वॉल्व है. Can you चीफ मिनिस्टर imagine? इन्वॉल्व था और पूरा मामला कैसे रफा दफा कर दिया। और गुजरात में घोड़े की टांग टूट जाती है तो उस पे ये लोग पूरा बवाल कर देते हैं, ये पूरी लॉबी। और अभी भी आप देखो कि ममता की एकदम क्लोज एड के घर से करोड़ों रुपए कैश मिले हैं और 50 किलो सोना मिल गया, कोई एक बंदा कुछ नहीं बोल रहा है। और यहाँ पे मतलब कि कुछ भी छोटा सा इशू हो जाए तो ये मतलब पूरा बवाल कर देते हैं। तो मैं कहती हूँ हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, दिखाने हैं तो दोनों दिखाओ। आप एक तरफा दिखाते हो, आप दूसरा तरफा नहीं दिखाते, तो ये तो बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है। So Himani says, "Wow, Kajal, gee, I salute you for all the struggles you went through, all your Agni Parikshas. What a challenging childhood! You are a real heroine, the real heroine." Thank you. Thank And you so Zoya much. says, "Yeah, Zoya says, so inspired by you, Kajal. God bless you and keep you happy and safe always. Wish all these so-called women and child welfare ministers work like you, honestly and bravely for our country." Thank you. Thank you, Zoya Zeed. Thank Yeah. you. And see another from Jivan, feminism has taken a wrong turn, ma'am. Feminism making it seem all wrong. True feminism is to do work and not fight for the unnecessary stuff. Now, here, friends, viewers, I'd like to tell you one thing. Kajal is not funded by anybody. She funds her own, expenses, and she has nobody who's backing her except some certain people who are solid, and she'll tell you about that. And also, bear in mind, she is working for the good of our country. She's fighting against evil. So it's all the more important that all of us support her, because only if we support individuals like Kajal does our country go forward. She's sacrificing her family, her safety. She's the one who employs her bodyguards. Nobody has given, no BJP, nobody has given her anything. They sit from afar and they watch as she, treads on. If I ask her for to come to our show, she's busy all the time because she is doing what she thinks is her duty. And her duty as a warrior is what changes the world for Indian women. So it's very important. We may hear about politicians talking the blah, 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 and all that. But the real heroines and real heroes are people like Kajal. They don't talk much. They are on the field. 24 hours they are on the field. She has children. It's not that she's sitting at home and saying all this. No, she's on the field. And it's not easy for women to go traveling every second. So, Kajal, do tell us, like, who are the people who are genuinely supporting you, and we are so proud of you. मीना जी, मुझे नहीं पता लोगों की क्या अवधारणा है। कुछ एक ग्रुप ऐसा सोशल मीडिया पे काम भी करता है जो सारे दिन संघ को, परिषद को कोसने का काम करता है। बट आई एम टेलिंग यू, अगर मैं जिंदा हूँ आज तो संघ की वजह से। मुझे कब का मार दिया होता, या मुझ पर इतनी एफआईआर कर करके मुझे परेशान कर दिया होता, लेकिन ये संघ है कि जिसने मुझे बैकअप दिया। पूरे गुजरात में विश्व हिंदू परिषद जो है वो मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहा है। एंड विश्व हिंदू परिषद मेरी सिक्योरिटी का मेक श्योर करता है कि मुझे खरोच भी ना आए। तो इससे बढ़कर क्या होगा मेरे लिए कि मेरा हिंदू संगठन मेरे साथ खड़ा है और चट्टान की तरह खड़ा है।
तो मैं लोगों को कहती हूँ कि संघ और परिषद को लाइमलाइट की नहीं पड़ी, वो लोगों की तरह मतलब उनको कोई राजनीति नहीं करनी है कि 4 केला किसी को देके फोटो डालो दुनिया भर की, या कहीं जाके फीता काट के फोटो डालो। ये हमारे एक ऐसे वॉरियर्स है जो जो है, इसीलिए आज आप और हम हिंदू है, बिलीव मी। बहुत से ऐसे केसेस मैं खुल के आपको बता नहीं पाती, बट बहुत से ऐसे जो बंगाल में हिंदुओं के साथ हुआ, तो उसको बहुत मतलब उन जो गरीब परिवार जिनको जिनकी बस्तियां जला दी गई या जिनका मर्डर हो गया, तो संघ है उनके साथ खड़ा है और हर तरह से खड़ा है। चाहे लीगल हेल्प प्रोवाइड करानी हो, चाहे रोजगार, भोजन, सिक्योरिटी, ये सबकी चिंता करता है संघ। इसलिए हम संघ परिवार कहते हैं, क्योंकि वो परिवार की तरह हमारे साथ हमेशा खड़ा रहता है। लोगों को इसलिए लगता है वो संघ को बार बार ब्लेम करते हैं क्योंकि संघ अपने काम का कोई पीआर नहीं रखा है, ना ही संघ ने कोई पीआर एजेंसी रखी कि उनके काम के बखान करे। संघ एक ऐसा है कि शांति से अपना काम करता है और पता भी नहीं चलने देता कि ये काम हुआ है, परिषद अगर कुछ कर रहा है तो। सो दे आर द रियल फाइटर्स। और उसमें भी जो प्रचारक होते हैं, अमेजिंग। मैंने पहले भी कहा था कि जो संघ के प्रचारक होते हैं मीना जी, वो आजीवन शादी नहीं करते हैं, उन्होंने अपना जीवन जो है राष्ट्र को अर्पित कर दिया होता है। पूरे भारत में संघ के प्रचारक प्रचार प्रसार का कार्य कर कर सब जगह विजिट करते। जैसे बंगाल में कुछ हो गया तो सबसे पहले वहां पे संघ के प्रचारक पहुंचेंगे, वहां का मुआयना कराएंगे, वहां पे जो जरूरत है उसको प्रोवाइड कराएंगे। कहीं नेचुरल डिजास्टर आ गया है तो वहां संघ पहुंचेगा पहले। संघ एक ऐसी, मेरे लिए मेरा परिवार बन गया, मेरे लिए सब कुछ संघ है, क्योंकि मैंने जो सीखा उनसे सीखा। जो मतलब मुझ में बदलाव आए वो संघ की वजह से आए। निस्वार्थ भाव से काम कैसे करना, राष्ट्र को समर्पित कैसे होना, हम ये उनसे सीखे। इसीलिए हमसे किसी की चाटुकारिता भी नहीं होती है। और संघ है, आज हिंदू की बेटियों के साथ अगर लव जिहाद होता है तो यही हिंदू संगठन ही आते हैं बच्चियों को बचाने, उनकी रक्षा करने। जो सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं ना कि संघ क्या कर रहा है, और एक एक स्टेटमेंट लिटरली कुछ लोग पकड़ते हैं कि मोहन भागवत जी ने ये बोला या किसी और ने ये बोला या परिषद के किसी ने, विश्व हिंदू परिषद के। आप एक एक शब्द मत पकड़िए, मैं ऑनेस्टली कह रही हूँ। आप अगर सोच रहे हो कि बस आपके सामने आकर वो बकवास ही करे सोशल मीडिया पे, तो सॉरी, ये आपने तो फिर आपका वो लेवल ही नहीं है कि आप कभी संघ को समझ पाओ। और जो सच में आपने संघ को समझा है ना, तो आप जैसे भगवान कभी बोलते नहीं है, वो मौन रहते हैं, फिर भी हम भगवान को अपने आप से कनेक्ट करते हैं। उसी तरह से आप संघ के साथ जुड़ो और कनेक्ट करो। और संघ में जो प्रचारक होते हैं वो लिटरली, मैं कहती हूँ, आज के जमाने के भगवान के स्वरूप है। वो जो 2 जोड़ी कपड़ा संघ सिलवा के देता है वही वो पहनते। और प्रचारक जैसे तैसे नहीं होते, बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, हाईली एजुकेटेड होते हैं। कोई भी प्रचारक मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा संघ में कि जो कम एजुकेटेड हो। सब पीएचडी एमफिल करे हुए होते हैं या बड़ी बड़ी डिग्रियां होती है और बहुत अच्छा फैमिली बैकग्राउंड, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाते हैं। किसके लिए कर रहे वो? उनका तो कोई घर परिवार नहीं है, उनको कहाँ पैसे वैसों की, उनके जेब में पैसा भी नहीं मिलता आपको। मीना जी, कहीं से आना है, जाना है, भोजन भी जैसे कहीं किसी कार्यकर्ता के यहाँ चले गए तो वहां पे भोजन हो जाता है। उन्हें ये भी नहीं पता कि आज जैसा भोजन है कल कैसा मिलेगा। कहीं तीखा खाना मिल गया, बेचारों उन्होंने तीखा खा लिया, कहीं मीठा मिल गया खाना तो मीठा खा लिया। हम तो घर में डिमांड करते हैं, अरे मुझे अपना खाना ऐसा चाहिए, इतना ही नमक होना चाहिए, इतना ही मसाला होना चाहिए। उनकी कोई डिमांड नहीं रहती है। इनफैक्ट संतों से भी बड़ा कार्य जो है वो प्रचारक कर रहे हैं। और मेरी नजर में, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द संत मुनि जी जो भी हमारे मान है, लेकिन मेरी नजर में संघ के प्रचारक सबसे बड़ा, मेरी नजर में भगवान के बाद अगर मैं किसी को वो जगह देती हूँ तो वो मैं संघ के प्रचारकों को देती हूँ। क्योंकि वो अपने ना तो कंफर्ट लेवल को देखते हैं, ना उनको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए, ना उनको ये कि कोई 4 व्हीलर ही लेने आए या कहीं हम यहीं बैठेंगे वहीं पे ही सोएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरा एक्सपीरियंस है, और जो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं तो प्लीज आप इस बात पे भी ट्रस्ट करिए कि ट्रस्ट मी, संघ नहीं होता आज तो आप सब महिला बुरखे में होती, हम इस्लाम में कन्वर्ट हो चुके होते और पुरुष जालीदार टोपी में होते। तो एक क्वेश्चन, नाउ दिस इज अ कैंडिड क्वेश्चन, after that I'll let you go. I know you have some another engagement. So Kajal ji, see, why don't we have ministers like you? क्योंकि हमें त्याग करना सिखाया है, हम निस्वार्थ भाव से त्याग और समर्पण करते हैं, ये हमें संघ से शिक्षा मिली है।
हमने कभी चाह नहीं रखी है कि अपना फायदा या अपना स्वार्थ देखे, और निस्वार्थ किए गए कार्य को का जो लेखा जोखा है ना, वो भगवान रखते हैं। इसीलिए आज तक मैंने जो भी कार्य हाथ में लिए हैं, भगवान ने वो सारे कार्य में मुझे सक्सेस दी है और वो पूर्ण करवाए। वो इसीलिए क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से था। एंड आई होप कि मैं हमेशा ऐसे ही प्योर रहूं, और हमारे जैसे लोग राजनीति में ना जाए वही बेहतर है, नहीं तो ये जो इतनी गंद है ये हमें करप्ट कर देगी। Absolutely. And also that viewers, you know it, whenever we are frank, they try to control us. And we don't want to be controlled because we want to tell the truth. So this is something that Kajal also, I'm sure, agrees बट with मीना me. जी एक चीज और, जैसे योगी जी भी है तो वो संत है और वो पॉलिटिशियन भी है, और जैसे योगी जी के गुरु थे अवैधनाथ महाराज जी, जिन्होंने पहला जो शुरुआत करी थी बीइंग अ संत चुनाव लड़ने की, तो उनके गुरु थे गोरखनाथ पीठ के अवैधनाथ महाराज जी, और योगी जी उनके ही शिष्य है। पर आप देखो कि ये कितनी प्योर सोल है, कितना निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं, और किस तरह से उसी तरह से नरेंद्र भाई मोदी भी संघ के प्रचारक रह चुके हैं, और संघ के प्रचारक से ही फिर वो सीएम बने और अब देश के प्रधानमंत्री है। तो ऐसा नहीं है, संघ से अच्छे लोग आए हैं और जिन्होंने अच्छा कार्य किया है, मैं ऐसा नहीं कहती सब ऐसे, मगर कम बट वो कम है, या वो कम है, तो कम है इसलिए तो उनका, सभी अगर मोदी जी जैसे होते तो मोदी जी की वैल्यू होती क्या, सभी योगी जी जैसे होते तो वैल्यू होती, इसलिए तो मोदी एक ही है, योगी एक ही है, रानी लक्ष्मीबाई एक ही थी, महाराणा प्रताप एक ही थे। हाँ, absolutely. So everybody is saying thank you, ma'am, and everybody is inspired by you. So I mean, I don't know the kind of compliments everybody is talking about you, and they're so glad that you've come and spoken to them because without realizing it, Kajal, you are inspiring them, and this inspiration goes way far because all these viewers, talk to another 100 people and they change. So this is so important for us, and thank you for giving us your valuable time. And look forward to another session. Same to connect with you again. And I'm really sorry, मुझे थोड़ा सा जाना पड़ेगा. And I told you the reason already, ना मीना जी? I know. Yeah. Thank so you. good night. आपके सभी दर्शकों को हमारा जय श्री राम, भारत माता की जय. Thank you. Good night. Yeah. Good night. Namaste. Jai Shri Ram. Yeah. So friends, I'll just take you back to the tunes which I wanted you to see. So in case any of the late comers miss this. So here's the first one, that what's happening in Mumbai. So you say, Are Mumbai tera baap ki nahi? You know the kind of language coming from where. And this is hopefully the future. And this is what is happening in Bollywood, one after the other. We are looking at Samrat Prithviraj, Shamshera, Ek Villain returns. We look at other movies like Amir Khan's movie, which is coming, Lal Chadda, and then you'll have Pathan. So many movies are coming. We'll all face them very bravely. So this is what our dear Sushant has to say about judiciary. This is what happened in Lok Sabha. And this is what happened in Silly Soap. Thank you, Zoya. Wonderful session, Meenaji. Your cartoons are making me laugh and I'm at work. Thank you, Zoya. Awesome cartoons, Bhavna. Thank you so much. Madam Karina mocked Sushant's sister. Please do your analysis video. Yes, sure. Every cartoon tells a great story. Great job. Thank you so much. Cutterwood gets what they deserve. Absolutely. Devanushi, great cartoons, love them. Always on point message. Again, as I said, Devanushi, there are times when you get very upset with what's happening, politically in our country. We as public
are, helpless, that we can't do anything. And it's at these times that cartoons like this, sort of give you some sort of bliss, because we can't talk openly. And earlier it was terrible because Mahavikas Agadi used to jail everybody who spoke. Yes, 1,000 kajals to be born. Cartoons say 1,000 words. Thank you, Maya. सारे बंधन को तोड़ दो, कैनेडियन कुमार की रक्षा बंधन. Well said, Karthik. Thank you, Bhairav. Yes, so true. You're showing reality in your cartoons. There's a lot of things, Deepthi, we cannot show otherwise. And otherwise, they attack us, and this is the only way we can express ourselves. Son, I'm your talented. How do you come up with this humor and wonderful caricatures? Actually, son, see, the moment I see or hear something on, the news, or, listen to something, I feel, there's something that I want to say, which is what public would also like to say. So in many cases, I always feel that the public also, sort of agree with me in the cartoons. Maria, truth via humor, yes. Please watch only real tigers in the world or zoo. Do not watch Sallu's Tiger 3. Very good way to let out your anger. Yes. Expressed perfectly. Stop being fooled by Bollywood. Yes, absolutely. Thank you, Manisha. We will not watch Sallu Tiger or Raksha of Akshay. Please share if you have any updates on SSR. Absolutely. Meena, great job. I'm proud of you and of your work. Thank you so much, Leela. The tiger zinda nahi hai. Now, here I would like to also say, Salman Khan, for a man who professes that he's so brave, look at the way he's running to the police to, arm himself. Look at the vehicle that he's bought for himself, which is a bulletproof vehicle. So look at how scared he was. Did he ever for once think what SSR would have undergone? You literally speak our minds. Thank you so much, sir. Man, please expose these underworld nexus in Bollywood. They get funds from Green Communal Nation, who want to destroy other faiths by installing Wahhabism, such as Qatar, Turkey, and Saudi. Well said, Naveen. Sukanya, good caricatures. Thank you so much, Sukanya. Chor ki dari mein tinka, ma'am, in case of Sallu. Absolutely. The last cartoon of Raut singing like a canary to ED is priceless, and I hope it comes true. They move crimes. They do more scared they will be, the more scared they will be. Yes. Tigers are endangered species, says Zara, but this tiger is a danger to our species. Yes. Aryan Khan is back to partying. You cannot change. Thank you. Thank you, Himani. That's a really beautiful compliment. The more crimes they do, more scared they will be. Joshi says, Karina is saying 5 agencies and 3 PR and 5 managers are not there with her. She has more than that. She's still mocking Sushant and family man boycott. Yes, absolutely. We do not want to see even one film of theirs. Can Kajal reach out to US NPR and provide some of the facts about love jihad and other things? Yes, of course she can. She's working on that. Fear of death flattens anyone, Meenaji, except for brave hearts and Sallu. Wonderful cartoons, Moonchild. Thank you so much. We will not forget about us, Sushant. Boycott the Bollywood mafia gangs forever. Baby penguin being carried by Raut, yes. Shilpa Shetty these days visiting temples and temples. I don't know whether even the gods will run away from her. Many times, many things happening in India, religion angle is represented more in favor of Muslims. And now, our minister has become minister of minorities, and already only, sort of what you call, women students in minority, they are getting a lot of benefits like scholarships. I don't know what will happen to Hindu women. SC pig will go to gutter only if you wash in Ganga water.
specifically in US. So I think with this, we will close this session. Thank you for joining me in large numbers. So look forward to seeing you tomorrow. Tomorrow, Gaurav Pradhan said he will join us. See you for another interesting session tomorrow at 8 p.m. Good night, friends.